এটা তো রিভিশন টাইপেরই হয়ে যাচ্ছে, তো এই সাবজেক্টটা তো রিভিশন টাইপেরই হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তো একটু প্র্যাকটিস করলে তোমাদের এই সাবজেক্টটা মোটামুটি ভালো করে হয়ে যাবে। ওকে, so let us start. Okay, so today's topic was your flexible pavement design. Okay, in our previous lecture we completed flexible pavement design using group index method, okay, which was your empirical method. See, I have told that this one is your empirical method several times, okay, and based on that only I have given some questions also, okay, in your internal exam. So please try to be regular and be try to be concentrated in the class, okay, what I am saying. So based on the lectures only we are setting our questions, okay. Okay, so let us start. See, today's topic is flexible pavement design by CBR method. Now, can you please tell me what is the full form of CBR and what do you mean by the CBR? This term you have heard, okay, many times in your geotechnical subject. So, can you please tell me, have you done this experiment? ये experiment किए हो ना सब लोग California bearing ratio का? Okay, this is the instrument. It looks like this. Sketch diagrammatically ये ऐसा दिखेगा. Okay, so and these are the several accessories. Okay, what are the different instruments which we have using in this test? Okay, तो जैसे ये है तुम्हारा क्या है? This is your CBR mold. Okay, दिखाई दे रहा है? तो देखो ये CBR mold है. Mold क्यों है? We have to prepare the soil sample. CBR is basically we are conducting test over the soil subgrade. Okay, ये pavement में कहाँ पे related है? It is related to subgrade, and we know subgrade is what? It is a compacted soil. ठीक है? तो CBR method से पता चल रहा है कि हमको we have to need to calculate what is the CBR value of the subgrade soil, and based on the CBR we can say that कि ये वाला soil कैसा प्रॉपर्टी है, इसका नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या मतलब क्या है, ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सबग्रेड सॉइल हम लोग उसके ऊपर जितना भी लेयर्स होगा, ठीक है, उसका थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं. ओके, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर सपोज दिस इज योर सबग्रेड सॉइल, ओके, तो इसके ऊपर जितना भी लेयर्स होगा, इसके ऊपर जितना भी लेयर्स होगा, से फॉर एग्जांपल this is one layer, okay, this is another layer above this one, okay. If we know what is the CBR value of this blue color layer, okay, based on this CBR value there is one more formula is there, okay, और एक formula है ये CBR का अंदर में. So using that formula we will get the value of thickness, ठीक है, एक thickness का, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, ओके. ये जो T है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? व्हील लोड, कॉन्टैक्ट प्रेशर. P इज व्हील लोड, राइट, कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड CBR वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ये T आता है. ओके, नाउ व्हाट इज T? T इज नथिंग बट द थिकनेस. थिकनेस किस चीज का थिकनेस? ये जो टोटल थिकनेस होगा, सॉरी, ये जो टोटल थिकनेस होगा अबव दैट पर्टिकुलर लेयर, ठीक है. वी नो पेवमेंट इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ लेयर, राइट, डिफरेंट लेयर्स जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है. सो ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है. तो ये ब्लू वाला क्या है? एक लेयर है. इसका अगर हमको CBR पता है देन यूजिंग दिस वैल्यू और यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट T. अब T क्या है? T इसका थिकनेस नहीं है. T क्या है? ये वाला लेयर के ऊपर जितना भी लेयर्स होगा उसका टोटल थिकनेस. ओके, से फॉर एग्जांपल इफ वी नो द CBR ऑफ दिस रेड, ये वाला लेयर का हमको पता रहेगा CBR इफ इट इज नोन टू अस, ओके. तो बोलो तो अब T विल बी विच वन? T इसका हमको वो पता है, CBR पता है. नाउ व्हाट विल बी द T वैल्यू? T कौन सा थिकनेस होगा अब? एनीवन?
ये टी क्या था, टी होगा कि जिसका भी सीबीआर हमको पता है उसके ऊपर जितना लेयर है उसका थिकनेस है। ओके, नाउ सपोज रेड लेयर का हमको सीबीआर पता है, नाउ टेल मी कौन सा ग्रीन पोर्शन। यस, ये जो लेयर है ऊपर वाला जो लेयर है ग्रीन, इसका थिकनेस इज द टी। ओके, if we use CBR of this red layer, then we will get this thickness. Clear? As per this formula. Okay. I think it is clear. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला से टी का जो वैल्यू आएगा वैसा होगा। ओके, तो नाउ लेट अस गो टू द सीबीआर। अब सीबीआर क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, सीबीआर क्या होता है एक्चुअली, इट इज व्हाट, इट इज अ कॉम्पैक्शन टेस्ट, राइट? तुम लोग तो पढ़े होंगे कॉम्पैक्शन क्या करता है। हम लोग एक्चुअली ये जो मोल्ड है इसमें वी विल मिक्स, वी विल टेक सैंपल। सैंपल कौन सा, जिस सॉइल का हमको सीबीआर चाहिए। ओके, वो सॉइल लेंगे, उसमें वाटर कंटेंट ऐड करेंगे। वाटर कंटेंट कौन सा होना चाहिए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। वेरी गुड। ओके, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का लेयर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, 3 ठो लेयर। okay, 3 layers, and depending upon the type of the compaction, whether it is light compaction, whether it is heavy compaction, वैसा वाला हम लोग हैमर यूज करेंगे। ओके, और ये हैमर का वेट एंड दी फ्री फॉल, ओके, ये जो हमको इसको पुश करना पड़ता है, देन वी विल लेट इट गो। तो ये वाला कॉम्पैक्ट देगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको वर्टिकली करना पड़ेगा। तो ये जो थिकनेस, सॉरी, ये जो लेंथ ऑफ फॉल है, फ्री फॉल कितना होगा और कितना इसका वेट है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कंपैक्शन, वेदर इट इज हेवी और वेदर इट इज योर लाइट। ओके, इसका हम सीबीआर का जो टेस्ट होता है, टेस्ट प्रोसीड्योर, वो हम तुम लोग को यहाँ पे देखना लिंक में दे दिया है। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो। अच्छा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ओके, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल कि कैसे करना है। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेयर बिठा दिया। ठीक है, अब ये 5 लेयर है, 3 लेयर है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कॉम्पैक्शन एंड कितना बार कॉम्पैक्शन करना है। जनरली 56 होता है और एक होता है 75 नंबर ऑफ ब्लोज। ठीक है, तो ये लाइट कॉम्पैक्शन के लिए 3 लेयर 56 ब्लोज और हाई हेवी वेट हेवी कॉम्पैक्शन के लिए 5 लेयर्स 75 ब्लोज। ठीक है, अब ये हो गया कॉम्पैक्ट। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के अलग से करके इसका वेट लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे, फिल्टर पेपर डालेंगे। ठीक है, करके वी विल गिव 1 सरचार्ज लोड, जो कि ये वाला है। ठीक है, एक 2.5 kg का सरचार्ज लोड देके हम लोग अब यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमने सैंपल को रख दिया। नाउ एक प्लंजर वी विल पुट। ओके, यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्लंजर को ऐड करने के बाद क्या करना है, ये प्लंजर का वेट हमको चाहिए और प्लंजर का ये जो डायमीटर है दैट वी मस्ट नो। ओके, एंड दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर थोड़ा याद रखना है स्पेशली। ओके, so this is 5 सेंटीमीटर डाया प्लंजर। अब जैसे जैसे वेट आएगा, लोड बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये डिफॉर्म करेगा, राइट? तो उसका डिफॉर्म हम लोग को यहाँ पे मिलेगा डायल गॉज में। एंड फ्रॉम प्रोबिंग रिंग वी विल गेट कि कितना लोड पड़ रहा है, वेदर इट इज इन केजी और वेदर इट इज इन यूनिट वेट, मतलब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर या लोड हमको यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से क्या आना है, यहाँ से कितना डिफॉर्मेशन हुआ वो मेजर करना है। ठीक है, अब देखो, नाउ कम टू द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट अ सॉइल मास विथ स्टैंडर्ड सर्कुलर पिस्टन। ये जो बोला था ना स्टैंडर्ड सर्कुलर पिस्टन, इट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, पिस्टन एट द रेट, अब रेट भी हमको चाहिए कितना रेट में ये नीचे दबेगा। ठीक है, तो बोला है 1.25 मिलीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1.25 मिलीमीटर वो रेट हम सेट कर देंगे इंस्ट्रूमेंट में। नाउ इट विल स्टार्ट टू पेनिट्रेट। ओके, टू दैट रिक्वायर्ड फॉर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग पेनिट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल। मतलब अगर और अच्छी तरीके से आएंगे तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, इन मेनी क्वेश्चंस दे विल गिव यू, दे विल आस्क यू कैलकुलेट सीबीआर। ठीक है, बोलेगा कि पेनिट्रेशन का वैल्यू दे देगा या लोड का वैल्यू दे देगा और स्टैंडर्ड लोड का वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, स्टैंडर्ड एक होगा क्या, एक है तुम्हारा सैंपल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं और एक है कि स्टैंडर्ड सैंपल वी हैव ऑलरेडी कंसीडर। तो नीचे क्या है, ये स्टैंडर्ड एग्रीगेट या स्टैंडर्ड सैंपल के लिए कितना लोड लग रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो सैंपल हम लोगों ने लिए है उसके लिए कितना लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये है रेशियो इज व्हाट, सैंपल बाय स्टैंडर्ड एग्रीगेट।
अब स्टैंडर्ड एग्रीगेट या स्टैंडर्ड सैंपल किसको बोलते हैं? जिसका CBR इज 100%, ठीक है। तो जिसका CBR 100% है उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड कर दिया है। ओके, अब क्या करना है? वी नो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लोड। हम बोले थे कि यहाँ से देखो लोड हम लोग को मिल जाएगा, तो यहाँ पे लोड हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन भी कहाँ से मिलेगा? डिफॉर्मेशन भी यहाँ से मिलेगा। सो लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का एक कर्व चाहिए हमको, इसीलिए देखो डिफरेंट लोड पे कितना डिफॉर्मेशन होगा मिल जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। अब वी हैव टू प्लॉट दैट डायग्राम, ठीक है। तो करने के बाद हम लोग का इट विल लुक लाइक दिस। देखो पेनिट्रेशन इस तरफ में, लोड इस तरफ में, ओके, केजी और मिलीमीटर में, ठीक है। प्लॉट करते करते जाएंगे, जैसे जैसे तुम्हारा लोड बढ़ रहा है देखो पेनिट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। ओके, गया गया एक कर्व हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है। ये वाला कर्व क्या है? दिस इज द एक्यूरेट कर्व, मतलब कोई करेक्शन करने का जरूरत नहीं है। इफ इट इज लाइक दिस देन नो नीड टू डू करेक्शन, ठीक है। बट इन मेनी केसेस ये कर्व हमको ऑब्टेन नहीं होता है, इन दैट केस हमको करेक्शन करना पड़ता है, दैट वी विल सी। ओके, अब ये जो कर्व मिला है तो कैसे मिला है? हाउ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किया गया क्या है? अ सॉइल सैंपल इज टेकन ओवर द वेसल एंड द लोड इज अप्लाइड ओवर द सॉइल, हो गया। लोड वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पेनिट्रेशंस आर नोटेड एंड CBR कर्व इज ड्रॉन। ये है CBR कर्व। तो लोड वर्सेस पेनिट्रेशन, डिफरेंट लोड के लिए डिफरेंट पेनिट्रेशन हमको मिल गया। अब ग्राफ में प्लॉट करो तो ये CBR कर्व हमको मिल गया। ओके, फॉर नो एरर्स इन CBR टेस्ट CBR कर्व शुड बी कन्वेक्स थ्रू आउट। देखो ये कन्वेक्स है पूरा, इफ देयर इज नो एरर, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए? यहाँ से हमको देखो एज पर द डेफिनेशन 2.5 मिलीमीटर का करस्पॉन्डिंग लोड या 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन का करस्पॉन्डिंग लोड हमको चाहिए फॉर्मूला में, दोनों में। अगर यहाँ पे 2.5 का ले रहे सैंपल के लिए तो स्टैंडर्ड के लिए भी 2.5 होना चाहिए। ओके, एंड इफ इट इज 5 मिलीमीटर फॉर सैंपल देन फॉर स्टैंडर्ड ऑल्सो 5 मिलीमीटर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ओके, इंटू 100 करने के परसेंटेज में आएगा। So load corresponding to 2.5 mm and 5 mm penetration is noted from the curve। देखो 2.5 के लिए सपोज ये है लोड P2.5 और 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए इतना लोड लग रहा है सपोज P5, ठीक है। तो अब इनमें से क्या करेंगे? एक 2.5 का ये वाला CBR निकालेंगे और एक 5 का ये वाला CBR फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे, मतलब दो बार निकालना है। एक 2.5 मिलीमीटर के लिए सैंपल में कितना पेनिट्रेशन हुआ और डिवाइडेड बाय 2.5 मिलीमीटर के लिए स्टैंडर्ड सैंपल में कितना लोड लग रहा है, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो CBR 2.5 आएगा। वैसे CBR 5 निकालना है 5 mm के लिए, ठीक है ना। उनमें से कौन सा मैक्सिमम होगा, वी हैव टू टेक दैट वैल्यू, ठीक है। तो देखो अब आता है कि ये तो हमको कहाँ से मिलेगा? दिस थिंग, ये जो सैंपल का लोड कितना है 2.5 या 5 मिलीमीटर के लिए, दिस वी विल ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट। जो हमने टेस्ट किया है यहाँ से हमको सैंपल का मिलेगा कि 2.5 मिलीमीटर के लिए पेनिट्रेशन कितना है और 5 मिलीमीटर के लिए पेनिट्रेशन कितना है। बट फॉर दिस स्टैंडर्ड क्या बोले थे? जिसका CBR 100% है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिटरमाइन करके रखा हुआ है। ओके, तो फॉर इन दैट केस दीज आर द वैल्यूज। कैन यू सी दिस वैल्यूज? देखो स्टैंडर्ड एग्रीगेट कौन सा है? क्रस्ट स्टोन है और जिसका CBR इज 100%। अब बोला है स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज, लोड अंडर पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm। स्टैंडर्ड के ऊपर जब टेस्ट करते हैं तो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना लोड लग रहा है? इतना kg, 1370 kg। ओके, एंड अगेन फॉर 5 mm कितना लोड लग रहा है? 2055 kg। ओके, दिस इज इन kg। देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों है तुम्हारा kg में है, ओके, लोड में है। लेकिन एज पर द डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? देखो एक है लोड या प्रेशर, ठीक है। एक लोड है, एक है प्रेशर। तो तुम दो मेथड में भी कर सकते हो, लोड बाय लोड करो या प्रेशर बाय प्रेशर। तो प्रेशर कितना होगा बोलो तो? अगर 1370 kg है, ये जो लोड इसके ऊपर हम दे रहे हैं इट इज 1370 kg। ओके, ये लोड जो है इट इज 1370 kg। ओके, so what will be the pressure on this soil? बोलो
ये लोड कहाँ से जा रहा है? थ्रू प्लंजर जा रहा है, राइट। ये जो प्लंजर है इसके थ्रू लोड जा रहा है कितना? 1370. सो व्हाट इज द प्रेशर ऑन दिस सैंपल देन? बोलो। यहाँ से लोड बाई एरिया में। यस, यहाँ से लोड जा रहा है कितना तुम्हारा? 1370 kg, ठीक है। अब कहाँ से जाएगा? यहाँ पे जो सर्कल है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस इज व्हाट? कॉन्टैक्ट एरिया, सरफेस एरिया क्या है? एक सर्कुलर है, ठीक है। एंड वी नो द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। कितना है डायमीटर? 5 सेंटीमीटर। हमने बोला था ना ये इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू नो दिस इज द लोड, ठीक है। यू नो द डायमीटर ऑफ दिस एरिया विच इज सर्कल. सो व्हाट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस एरिया? प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर कितना होगा? P. P का फॉर्मूला क्या है? P स्मॉल p इज इक्वल्स टू लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। लोड है कैपिटल P और एरिया क्या है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। पाई बाई 4 डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डी वैल्यू? डी इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है एंड दिस लोड कितना है? दिस इज 1370. तो बोलो तो कितना आएगा? एंड दिस लोड इज फॉर कितना के लिए? देखो दिस लोड वाज फॉर दिस लोड वाज फॉर 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। 2.5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए है। तो बोलो ये कितना आएगा प्रेशर? 1370 kg 69.77. तो देखो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 69 पॉइंट समथिंग समथिंग विच इज अप्रोक्सीमेटली देखो कितना है? 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इसका करस्पॉन्डिंग तुम्हारा प्रेशर है ये, ओके। तो जब बोलेगा कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए अगर लोड के हिसाब से सीबीआर निकालना है तो दिस इज दिस वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड एग्रीगेट का। एंड अगर बोलेगा प्रेशर के हिसाब से सीबीआर निकालो फॉर 2.5 देन वी हैव टू यूज दिस, ओके। ये वाला तुम लोग को एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके। सिमिलरली फॉर 5 के लिए देखो कितना है? इट इज स्टैंडर्डाइज 2055 होना चाहिए, ओके। फॉर स्टैंडर्ड लोड 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन होने के लिए कितना लोड लगेगा? 2055 kg। तो इसका करस्पॉन्डिंग तुम्हारा यूनिट क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम 2055 बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी है प्लंजर का डाया विच इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो 105 kg पर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Is it clear? So this value won't be given to you in many question. तुमको ये वैल्यू दिया नहीं रहेगा स्टैंडर्ड का। You have to remember. Either ये रिमेंबर करो, प्रेशर के हिसाब में रिमेंबर करो और लोड के हिसाब में रिमेंबर करो, ठीक है। 2.5 के लिए इतना लोड लगता है और 5 mm के लिए इतना लोड लगता है, या 2.5 के लिए इतना प्रेशर लगता है, 5 के लिए इतना प्रेशर लगता है। इफ यू नो प्रेशर का वैल्यू तो तुम इजीली लोड में कन्वर्ट कर सकते हो। इफ यू नो लोड का वैल्यू यू कैन इजीली कन्वर्ट टू द प्रेशर, ओके। जस्ट और एक चीज ये रिमेंबर करना है कि डायमीटर ऑफ द प्लंजर विल बी 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो स्टैंडर्ड, हाँ वेरी गुड। तो ये वाला पोर्शन हमको पता रहेगा, ओके। दिस वैल्यू विल बी नोन टू अस फॉर 2.5 या फॉर ये 2.5 के लिए या 5 के लिए हमको वैल्यू पता रहेगा, आइदर इन लोड और इन प्रेशर, दोनों ही केस में वी नो दिस वैल्यू। तो जो अननोन क्या है? ये वैल्यू, ओके। मतलब तुम्हारा सैंपल के लिए करस्पॉन्डिंग लोड या प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू 2.5 और 5 mm ये तुमको ग्राफ से मिलेगा, दैट मीन्स फ्रॉम द टेस्ट, और इन क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू, ओके। एमसीक्यू में अगर देगा कि लोड तुम्हारा होगा फॉर 2.5 पेनिट्रेशन इतना है तो सीबीआर निकालो, ठीक है। तो क्या करोगे? 2.5 के लिए जितना भी लोड दिया है डिवाइडेड बाय तुमको ये 1370 इंटू 100 कर देना है, तो वी विल इजीली कैलकुलेट सीबीआर, ओके। सो नाउ
अब क्या करना है, देखो यहाँ से दो दो बार निकाला है, 2.5 और 5, ठीक है। अब देखना है कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होता है, तो वी हैव टू टेक दैट वैल्यू ओनली, दैट वैल्यू ऑफ सीबीआर, ओके। जनरली देखा गया है कि 2.5 के लिए सीबीआर ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ देखो सीबीआर 2.5, सीबीआर 5 का निकाल लिया वैल्यू, ठीक है। सो टेक द मैक्सिमम, ओके। यहाँ पे देखो लोड कंसीडर किया तो 1370, यहाँ पे प्रेशर कंसीडर दिया तो 70, ठीक है। यूजुअली CBR 2.5 विल बी ग्रेटर देन CBR 5। अगर ऐसा हुआ तो 2.5 डायरेक्टली पकड़ के 2.5 के लिए जो CBR आया वही तुम लोग का आंसर होगा फाइनल, ओके। इफ नॉट, अगर नहीं हुआ देन रिपीट द टेस्ट, टेस्ट को रिपीट करो, फिर से CBR 2.5 निकालो, फिर से CBR 5 निकालो, ठीक है। अगेन इफ देर इज नो चेंज, अगर 2.5 मैक्सिमम है तो बढ़िया है, अगर फिर भी देख रहे कि CBR 5 का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, हम CBR 5 पे पकड़ के चलेंगे, ठीक है। इफ नो चेंज देन टेक मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही पकड़ के चलेंगे। सीबीआर इवैल्यूएट द सबग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ रोड एंड पेवमेंट, ओके, ये तो हो गया है। नाउ अब बोले थे कि अगर फुल्ली कन्वेक्स रहता है फॉर करेक्ट इफ देर इज नो एरर, ये कन्वेक्स रहता है, ओके। बट इफ देर इज एन एरर, ठीक है, कहाँ कहाँ से एरर होता है देखो। अगर टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, मतलब ये जो सरफेस ऑफ द सैंपल है इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल, मतलब प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट किए हो तुम तो क्या होगा, एक ही जगह पे ज्यादा डिप्रेशन होगा, राइट, और यहाँ पे कम डिप्रेशन होगा। सो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, तब एरर हो सकता है, ठीक है। प्लंजर बॉटम ट्रूली हॉरिजॉन्टल अगर नहीं है तो, जैसे ये प्लंजर का बॉटम भी अगर ट्रूली हॉरिजॉन्टल नहीं है तब भी एरर होता है। क्यों बोलो तो, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑलरेडी डिप्रेशन है तो ये जब लोड देगा तो ये तो इजीली मतलब मूव करेगा, राइट, कोई यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं है तो क्या होगा, वो इजीली डिफ्लेक्ट करेगा, डिफॉर्म करेगा, तो ज्यादा रीडिंग हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो उस वजह से तुम्हारा ये कनकेव आता है एंड सॉइल इज नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड, दैट इन दैट केस तुम्हारा ग्राफ ऐसा आ सकता है, इनिशियली कॉन्वेक्स, एक कॉन्केव, फिर कन्वेक्स। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वेक्स में कन्वर्ट कर देना है, तो करेंगे क्या, हाउ वी विल डू। तो पहले निकालो ये ऐसा वाला कर्व के लिए निकाल के देखो 2.5 कहाँ पे आ रहा है लोड, और 5 मिलीमीटर के लिए लोड कहाँ पे आ रहा है, ओके। ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब देखो जहां से तुम्हारा ये चेंज हो रहा है, कनकेव से कन्वेक्स में जहां पे चेंज हो रहा है उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। सपोज दिस इज दैट पॉइंट, ओके। नाउ ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दैट पॉइंट, इसके थ्रू एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो आफ्टर ड्रॉइंग द टेंजेंट तो क्या होगा देखा जाएगा, इसको एक्सटेंड कर देना है। कहाँ पे एक्सटेंड करना है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये वाला जाके कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल कर्व के लिए ये वाला पॉइंट कितना है, 1.1 mm है, ठीक है। लेकिन करेक्टेड पॉइंट के लिए अब ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा बोलो तो, ये वाला पर करेक्टेड ग्राफ ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, दिस विल बी योर नाउ जीरो, मतलब अब ये ओरिजिन हो जाएगा करेक्टेड ग्राफ। तुम्हारा करेक्टेड ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ओके। तो ओरिजिनल के लिए 0 यहाँ पे है, लेकिन करेक्टेड के लिए अब ये वाला 0 होगा, ठीक है, ये वाला ओरिजिन होगा। अब यहाँ से तुम्हारा ओरिजिन स्टार्ट हुआ है फॉर दिस कर्व, मतलब यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ग्राफ यहाँ से प्लॉट करते करते तुम जाओगे। तो ओरिजिनली 2.5 यहाँ पे था पहले, अब ये कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा, इन दिस ग्राफ पहले 2.5 यहाँ पे था, ठीक है। ये वाला ग्राफ में 2.5 इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब फॉर दिस ओरिजिन 2.5 कहाँ पे होगा, शिफ्ट होगा तो, राइट। ये देखो पहले ओरिजिन यहाँ पे था तो इसका 2.5 यहाँ से है, फ्रॉम द ओरिजिन 2.5 वाज हियर। अब इसका ओरिजिन यहाँ पे है तो इसका 2.5 विल बी समवेयर हियर, ठीक है। अब समवेयर यहाँ पे हो जाएगा इसका ओरिजिन, इसका 2.5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
ओके। सिमिलरली पहले वाला जो था ओरिजिनल कर्व के लिए 5 यहाँ पे था क्योंकि इसका ओरिजिन यहाँ पे था, तो यहाँ से तुम्हारा 5 ये है अब, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन। बट फॉर दिस न्यू कर्व ओरिजिन इज दिस वन, तो यहाँ से 5 थोड़ा शिफ्ट हो गया है, अब 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये करेक्टेड 2.5 का हमको करेक्टेड पी चाहिए, जाएंगे में जहाँ पे है तो हम लेंगे, दिस इज 2 पहले यहाँ पे 5, हाँ ठीक है, और डॉट फर्स्ट हियर, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे, ओके। अब जैसे ये वाला ओरिजिनली पहले 5 का वैल्यू कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, ओके, इट वाज हियर। नाउ करेक्टेड वैल्यू विल बी यहाँ से होगा, इसको एक्सटेंड कर दो, ये जहाँ पे टच करेगा उसका करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस निकालो, तो दिस इज द करेक्टेड P5 एंड दिस इज द करेक्टेड P2.5। अब हमको ये वाला वैल्यू लेके CDR कैलकुलेट करना है, नॉट दिस वन, ये भी नहीं चलेगा, ये है प्रीवियस वाला P.25 मतलब ये जो है, ठीक है, और दिस इज द प्रीवियस वाला P5 जो कि ये है, ये वैल्यू हमको नहीं लेना है, we have to take this new value of P5 and P2.5 and procedure is same। इसके बाद वही CBR का जो फॉर्मूला है वहाँ पे पुट कर दो, so in that way we will get the CBR, okay, corrected CBR। clear? Any doubt? hello, clear तो? Yes, ma'am. सो दिस इज द मेन फंडा। देखो ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये ऑलरेडी तुम पढ़ के आए हो, राइट? तो लेकिन एमसीक्यूज में आता है, इसीलिए थोड़ा दिखा दिए, ओके, कि ऐसा टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है, ओके। अब लेट अस गो टू द, हम लोग का जो मेन है जो है दैट इज द डिजाइन। डिजाइन मीन्स थिकनेस ऑफ डिजाइन, डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट बाय सीबीआर मेथड। so this is the formula which is used in your तुम्हारा as per this method, okay। so 1.75 p, ठीक है, by CBR by ये परसेंटेज में होगा माइनस कैपिटल P by स्मॉल p, where capital P is the wheel load in kg, small p is tire pressure और contact pressure in kg per centimeter square। सी यहाँ पे एक लिमिटेशन है, दिस फॉर्मूला का भी एक लिमिटेशन है, क्या है कि हम लोगों का मटेरियल का प्रॉपर्टी का कोई ज्ञान नहीं है, ओके। प्रॉपर्टी लो, बुरा प्रॉपर्टी, क्योंकि इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द लोड एंड द सीबीआर, ठीक है, जो अंडरलाइंग लेयर का सीबीआर है उसके ऊपर वाला लेयर थिकनेस क्या होता है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ना कि वो मतलब इंडिविजुअल लेयर का ही प्रॉपर्टी कैसा होता है उसके ऊपर थिकनेस कोई मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हम लोग, ओके। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ दैट इंडिविजुअल लेयर। इसमें क्या बोले थे कि नीचे वाला लेयर जो होगा, नीचे वाला लेयर का सीबीआर मटेरियल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, उसके ऊपर जितना भी लेयर होगा उसका थिकनेस, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक लिमिटेशन है, ठीक है, कि हमको इसका प्रॉपर्टी नहीं पता है, इसका भी प्रॉपर्टी हमको नहीं पता है, हम लोग सिर्फ इसका प्रॉपर्टी जो है सीबीआर उसके ऊपर, उस वैल्यू के ऊपर ही हम बेसिस करके ये दोनों का थिकनेस कितना होना चाहिए हम एज्यूम कर रहे हैं यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है, ठीक है। और एक है कि लिमिटेशन, अगर सीबीआर का वैल्यू ये ग्रेटर देन 12% हो गया तो ये वैलिड नहीं होगा, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब ये वैलिड आंसर नहीं देगा इफ सीबीआर इज ग्रेटर देन 12%, ओके। सो दीज आर द टू लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो और क्लियर होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो मेन है तुम लोग का क्या चाहिए, मेन है ये फॉर्मूला, ओके, दिस फॉर्मूला, ओके। और इस फॉर्मूला के लिए ये वाला स्टैंडर्ड का लोड याद रखना चाहिए और प्लंजर का डाया याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए स्टैंडर्ड का लोड कितना होगा या प्रेशर कितना होगा,
ठीक है, एंड टेक द मैक्सिमम 2.5 और 5 से जो भी होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू लो, ठीक है। तो यहाँ ऐसे दिस इज द प्रोसीजर। तो वंस यू गेट द सीबीआर वैल्यू, तुमको लोड दिया रहेगा, तुमको प्रेशर कॉन्टैक्ट प्रेशर दिया रहेगा, यूज दिस फॉर्मूला फॉर गेटिंग व्हाट थिकनेस। So this is the main funda. Okay, now let us solve the problem. Can you see the problem? Can you read the problem? See, CBR test is conducted over soil subgrade and following results are obtained. ठीक है, सॉइल सबग्रेड के ऊपर टेस्ट करके डिफरेंट रिजल्ट आया है। जो हम लोग बोले थे ना, प्लॉट करना है ग्राफ, मेनली क्या चाहिए, पेनिट्रेशन का वैल्यू चाहिए, लोड का वैल्यू चाहिए। तो देखो 2.5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए लोड आ रहा है, दिस इज फॉर द सैंपल, प्लीज रिमेंबर ये जो भी वैल्यू दिया है दिस इज फॉर द सैंपल, नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को खुद को याद रखना है। ओके, तो 2.5 मिलीमीटर के लिए लोड है, देखो केजी में दिया है, सो दिस इज कैपिटल पी। ओके, लोड है तुम्हारा कितना, 2.5। देखो ये पी और ये पी में कंफ्यूज मत होना, दिस इज द व्हील लोड। ओके, एंड ये वाला जो पी 2.5 है, हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो तुम्हारा ये जो डायल गॉज में प्रोबिंग रिंग में जो रीडिंग आएगा वो है पी 2.5 फॉर करस्पॉन्डिंग 2.5 mm डिफॉर्मेशन एंड पी 5 फॉर करस्पॉन्डिंग 5 mm डिफ्लेक्शन के लिए। ओके, तो दिस इज 50 एंड दिस इज 82। ठीक है, एज्यूम कर्व थ्रू आउट कन्वेक्स, मतलब दिस इज ट्रू कर्व, कोई करेक्शन करने का जरूरत नहीं है, ये पूरा थ्रू आउट कन्वेक्स है, ये ऐसा है। तो जो भी वैल्यू आएगा दैट इज द करेक्टेड ओनली। ओके, नाउ और ये तो दे दिया है, तो यहाँ से हमको सीबीआर का सॉरी सबग्रेड का सीबीआर मिल जाएगा। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस फॉलोइंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओवर द सॉइल सबग्रेड, मतलब सॉइल सबग्रेड के ऊपर जो भी लेयर्स दिखेगा दीज आर दोज लेयर्स। ठीक है, तो क्या क्या है, सॉइल सबग्रेड के ऊपर है कॉम्पैक्ट सॉइल जिसका सीबीआर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है 6%। ठीक है, फिर कॉम्पैक्ट सॉइल के ऊपर है तुम्हारा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल जिसका सीबीआर 12% दे दिया है। फिर उसके ऊपर है वेल ग्रेडेड ग्रेवल जिसका सीबीआर है 60%। ओके, फिर उसके ऊपर है बिटुमिनस सरफेस। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये प्रॉपर्टी भी बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। इसलिए देखो पहले कॉम्पैक्ट सॉइल, फिर पुअरली, देन वेल ग्रेडेड। ओके, फिर उसके बाद आ रहा है टॉप मोस्ट लेयर है वो बिटुमिनस सरफेस, बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल तो इसलिए बिटुमिनस सरफेस दे दिया है जिसका थिकनेस ऑलरेडी गिवन टू यू 4 सेंटीमीटर सरफेस थिकनेस दे दिया है। और टॉप मोस्ट लेयर का थिकनेस गिवन, बाकी लेयर का थिकनेस नहीं दिया है, सीबीआर दिया है। सो वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटल टी, okay, for individual layer. Now design the pavement using CBR method if wheel load is 4100 kg, capital P दे दिया है, and tire pressure is 7 kg per centimeter square, small p भी दे दिया है, जो कि ये वाला you have to use in this equation, capital P दिया है, small p दिया है, 7 kg per centimeter square and this is 1000 कितना है 4100 kg। Question clear? Is it clear question? Yes, ma'am. Okay. Now how to solve? तो फर्स्ट पहले सीबीआर निकालो, तो सबग्रेड का सीबीआर चलो निकालते हैं। ओके, प्लीज कैलकुलेट सबग्रेड का सीबीआर, हमको बोलो कैलकुलेट करके। तो सीबीआर का फॉर्मूला क्या था, सीबीआर फॉर्मूला क्या था, एक होगा 2.5 के लिए, ठीक है, और एक होगा सीबीआर तुम्हारा क्या आ जाएगा 5 mm के लिए। ओके, सीबीआर 5 के लिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, लोड दे दिया है, सो लोड के हिसाब से हम निकालेंगे। तो लोड क्या है, P 2.5 बाई स्टैंडर्ड लोड। ओके, स्टैंडर्ड एग्रीड के लिए स्टैंडर्ड लोड कितना होगा, ओके, इनटू 100। सिमिलरली यहाँ पे भी P5 जो कि गिवन है फॉर द सैंपल, मतलब लोड अप्लाइड ऑन द सैंपल फॉर 2.5 mm penetration which is 50 kg, load applied on sample, okay, for 5 mm penetration which is 82 kg। तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, लोड अप्लाइड ऑन स्टैंडर्ड
एग्रीगेट फॉर 2.5 mm पेनिट्रेशन। तो कितना था यहाँ पे 2.5 mm के लिए स्टैंडर्ड लोड, हाँ 70. kg per centimeter square, that is 70 kg per centimeter square। सी यूनिट क्या है इसका, kg है, मतलब हमको यहाँ पे kg में ही स्टैंडर्ड लोड चाहिए, नॉट इन kg per centimeter square। ओके, तो लेट अस सी, वहाँ पे देखो वो वाला वैल्यू सी, अब देखकर बोलो कितना होगा, यहाँ पे कितना बिठेगा 1370. बोलो। हाँ, तो यहाँ पे बिठेगा तुम्हारा 1370, ठीक है, और यहाँ पे बिठेगा तुम्हारा 2055, ओके, into 100, and we know P 2.5 is your 8 point कितना था 50 kg था। हाँ देखो P 2.5 is 50, so 50 by 1370 into 100, और P5 is your 82, so 82 by 2055 into 100, निकाल के बोलो कितना आएगा। अच्छा ये 60 है क्या, ओ दिस इज 60, ओके दिस इज नॉट 50, 60। प्लीज कैलकुलेट, so this is 60, this is 82, तो P 2.5 कितना आएगा, CBR 2.5 कितना परसेंटेज, 60 by 1370 into 100 কত আসছে 4.37, Yes, ma'am. 4.37, right, and this is your 82, so 82 divided by 2055 into 100, तो ये आ रहा है 3.99, मतलब अप्रॉक्स 4, राइट। अब बोलो विच सीबीआर वी हैव टू कंसीडर, कौन सा सीबीआर हम लेंगे, विच एवर इज मैक्सिमम, राइट, तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है 4.37 है, ओके। Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो 4.37, 3.99, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमको लेना है, तो दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है, सो मैक्सिमम इज व्हाट, सीबीआर इज 4.379, तो सीबीआर ऑफ सबग्रेड है, ये सबग्रेड का हम सीबीआर निकाल रहे हैं क्योंकि ये सबग्रेड का टेस्ट कर रहे हैं, राइट, सबग्रेड सॉइल का सबसे नीचे जो लेयर होगा, तो उसका है तुम्हारा सीबीआर वैल्यू इज 4.379, ओके না। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে এখন অবধি থাক, ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসে আমি অঙ্কটা করাবো, তো তোমরা একটু ব্রেক নিতে পারো, একটু লম্বা আছে অঙ্কটা, ঠিক আছে, সো ব্রেক নিতে পারো তোমরা, ওকে। তোমরা কখন আসবে নাকি কন্টিনিউ করব, अच्छा ठीक है, ये वाला थोड़ा कंप्लीट करते हैं, इसका सीबीआर यूजिंग सीबीआर 4.37 कैलकुलेट पी, पी कैलकुलेट करो, ये है फॉर्मूला, where P is your 4100 kg, okay, and this is your 7, small p is 7 kg per centimeter square, तो ये है 7 और ये है 4100, तो T का वैल्यू निकालो तो दैट विल बी इन सेंटीमीटर, एंड CBR आ रहा है तुम्हारा 4.37, ओके, तो CBR इज योर 4.37, परसेंटेज में रख दो उसको, तो प्लीज कैलकुलेट दिस वैल्यू, T का वैल्यू कितना आएगा, 1.75 into 4100 divided by 4.37 minus 4100 divided by pi divided by 7, इसका अंडर रूट কত আসছে, कितना आ रहा है, कितना सेंटीमीटर आएगा, করছো তোমরা অঙ্কটা, Ma'am, 38 centimeter. 38, ঠিক আছে, ভেরি গুড, সো
आंसर इज 38 centimeter for CBR equals to 4.37 percentage, P is 4100, small p is 7 kg per centimeter square करके देखो 38 सेंटीमीटर आ रहा है. Now what is this 38 सेंटीमीटर? 38 सेंटीमीटर क्या है बोलो तो? Thickness above the subgrade. Yes, thickness above the subgrade. अब let us see how many layers are there. ठीक है, यहाँ पे देखो एक लेयर हम लोग ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले तुम्हारा आएगा सबग्रेड. ठीक है, जिसका CBR है 4.37. ठीक है, उसके ऊपर बोला है क्या आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है तुम्हारा कॉम्पैक्टेड सॉइल जिसका CBR कितना है 6%. सपोज रेड से हम लोग कर रहे हैं. ओके, उसके ऊपर है कॉम्पैक्ट सॉइल. अब इसके ऊपर कौन सा है, मतलब ये है तुम्हारा रेड. ओके, सबग्रेड है तुम्हारा ये वाला, ये कलर से हम डिनोट कर रहे हैं. ओके, और फिर पुअरली ग्रेडेड. अब पुअरली ग्रेडेड सपोज हम ये कर रहे हैं ग्रीन से, पुअरली ग्रेडेड. ओके, जो कि ये है पुअरली ग्रेडेड. ठीक है, अब बोला गया है वेल ग्रेडेड. तो ये जो वेल ग्रेडेड है ये वाला है. ओके, अब उसके ऊपर जो बिटुमिनस है, सपोज इससे डार्क ब्राउन से करते हैं, बिटुमिनस ये वाला है. ठीक है, सो ये है तुम्हारा बिटुमिनस. ठीक है, तो सबग्रेड जो है इसका CBR हम लोग को बोला है कितना है, इसका CBR तुमको बोला है कि इसका CBR है 4.37. ठीक है, तो 4.37% CBR के लिए T का वैल्यू है क्या है, T का वैल्यू है तुम्हारा फ्रॉम ईयर टू ईयर. ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक है तुम्हारा T, विच इज हाउ मच, कितना है वो वैल्यू 38. यस. तो ये जो टोटल थिकनेस हमारा आ रहा है दैट इज T फॉर CBR 4.37 विच इज 38 सेंटीमीटर. तो सबग्रेड के ऊपर जितना भी लेयर है सबका टोटल थिकनेस आ रहा है 38 सेंटीमीटर. लेकिन हमको इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस चाहिए, इसके लिए ये सब दिया गया है. देखो यहाँ पे डिफरेंट CBR आया, तो डिफरेंट CBR से डिफरेंट T का वैल्यू आएगा. फिर सब्ट्रैक्ट करते करते हम लोगों का ये वाला इंडिविजुअल का थिकनेस हमको पता चल जाएगा. तो दिस आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, अभी ब्रेक लो, 11 बजे ज्वाइन करना. ओके Okay, ma'am. ওকে ম্যাম. ওকে, ক্লিয়ার তো সবার? হ্যাঁ ম্যাম. এই অঙ্কটা তো অনেকবার আমি করিয়েছি. Yes, ma'am. এখনো যদি ক্লিয়ার না হয়